हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहत सर की क्लास। माई सेल्फ फरहत हादी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आवर टॉपिक इज टुडे आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन. This lecture is going to be very important and useful for you. So don't go anywhere and watch my video till the end. And in the end of this video, don't forget to press like, share and subscribe button. So friends, let's begin the class. So friends, our topic is today output devices. So here I have written the definition of output devices. As per its definition, it is used to display the information or result in the user readable form, either in soft copy or hard copy. So friends, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट डिवाइसेस का पर्पस ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को डिस्प्ले करे यूजर रीडेबल फॉर्म में. मीन्स कि एज वी नो दैट कि आवर सिस्टम नोज ओनली मशीन लैंग्वेज, either in form of zeros or ones. So it processes all the data in form of zeros and ones. But if it sends the information in form of zeros and ones, then we can't read it, we can't understand it. So it converts in the user readable form so that we can understand it. Okay. Either in soft copy. Soft copy means कि whatever we get through monitor is called soft copy. And hard copy means whatever we get through the printer is called hard copy. It is same as the difference between software and hardware. The soft copy को we can't touch it, we can see it only. And with the hard copy we can touch it. Okay. Then come to the type of output devices. So here I have written the types of output devices. Monitor first is, second printer, third plotter, fourth projector, and last one is speakers. Okay. So I am going to explain this one by one. So firstly understand about monitor. So friend, what is monitor? Monitor, it is an output device. It is used to display the information processed by the CPU in form of soft copy. Okay. So it is an output device. It is used to display the information processed by the CPU in form of soft copy. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है और इसका पर्पस है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है CPU उसको डिस्प्ले करता है, मीन्स दिखाता है, और ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है. ओके. Essential output device for each and every computer. तो फ्रेंड्स, ये एसेंशियल आउटपुट डिवाइस है हर कंप्यूटर के लिए. मीन्स कि विदाउट मॉनिटर वी कांट यूज कंप्यूटर, बिकॉज इफ वी डोंट अटैच द मॉनिटर विद कंप्यूटर then we can't see our result. Okay, so it is essential. Essential means zaruri. But the other output devices are optional, like printer, plotter, projector and speakers. Optional means whenever we require it, then we use it. Okay, but it is not necessary. Types of monitor. First is CRT monitor.
CRT, its full form is cathode ray tube, CRT. Next is TFT monitor. Its full form is thin film transistor. Third is LCD monitor. Form is liquid crystal display. Fourth is LED monitor. Full form is light making diode. Okay. And next is plasma monitor. Okay. So here I have written the types of monitor. First is CRT, it stands for cathode ray tube. Then TFT monitor, its full form is thin film transistor. Then LCD monitor, liquid crystal display. Then LED monitor, light emitting diode. Then plasma monitor. Okay. So what are its uses? So cathode ray tube was used in earlier times. In earlier days we use CRT monitor. Earlier days means पुराने टाइम में हम इसको यूज करते थे CRT मॉनिटर को, बट एट दिस टाइम वी डोंट यूज CRT मॉनिटर. अभी CRT मॉनिटर यूज में नहीं है. यहाँ लिख सकते हैं वी डोंट यूज इट. तो CRT मॉनिटर क्यों यूज में नहीं है कैथोड रे ट्यूब वाले? फ्रेंड्स, CRT मॉनिटर आप देखे होंगे बड़े साइज के होते हैं. इट वॉज बिग इन साइज. क्यों बिग इन साइज होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसे CRT कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब. जस्ट लाइक ए पिक्चर ट्यूब वॉज यूज इन अर्लियर डेज टीवीज. जो पहले की टीवीज आती थी उसमें भी CRT यूज होती थी. तो उसकी वजह से चाहे मॉनिटर हो या टीवी हो, दोनों की साइज बड़ी हो जाती थी. पहला डीमेरिट क्या है CRT का कि डीमेरिट्स में अगर आप लिखना चाहो कि बिग इन साइज, यहाँ आप लिख सकते हो डीमेरिट्स. डीमेरिट्स ऑफ CRT मॉनिटर्स. तो पहला बिग इन साइज, इट वाज बिग इन साइज. सेकंड वन इज ए कंज्यूम्स a lot of energy. एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं. एनर्जी को सिंपल फॉर्म में आप मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड इज ऑक्यूपाई मच स्पेस. देन बल्कि and gives less backup with inverter. तो ये इसके डीमेरिट्स थे फ्रेंड. पहला था फर्स्ट बिग इन साइज. ये सभी एवरीबॉडी नोज दैट कि CRT मॉनिटर जो होते हैं बड़े साइज में होते हैं. अगर if you put CRT monitor with these monitors, TFT है, LCD है, LED मॉनिटर के साथ आप रखोगे, कंपेयर करो तो देखोगे कि ये बड़ी साइज का होता है CRT मॉनिटर. तो सबसे बड़ा डीमेरिट की साइज बड़ी है. देन कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ एनर्जी. एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. यह बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था क्योंकि इसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती थी, तो इसकी वजह से इसको ज़्यादा पावर चाहता था. अर्लियर डेज में जो है इवन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था सिस्टम में हमारे कंप्यूटर में, वो मॉनिटर ही कंज्यूम करता था. मोस्टली 150 वाट टू 200 वाट्स तक के ये पावर कंज्यूम करते थे जो मॉनिटर्स ओनली. तो ये भी इसका डीमेरिट है. देन ऑक्यूपाइंग मच स्पेस. ज़्यादा स्पेस उसको चाहता था. आप देखते थे, आप रखते हो कहीं भी तो ज़्यादा स्पेस टेबल पे गिरता था, तो बड़े साइज़ का टेबल बनवाना पड़ता था हमको.
देन बल्कि, बल्कि मीन्स क्या हुआ, भारी। तो ये भारी भी होता था, इसको उठाना शिफ्ट करना ये डिफिकल्ट होता था। देन गिव्स लेस बैकअप विथ इन्वर्टर। अगर इन्वर्टर या पावर बैकअप आप लेते हो मीन्स की इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो योर सिस्टम विल नॉट रन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन कंपेरिजन टू दीज मॉनिटर्स, क्योंकि अकेले वो ज़्यादा कंज्यूम करता था पावर, तो बैकअप भी कम देता था। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ CRT मॉनिटर, दैट्स वाई वी डोंट यूज इट एट दिस टाइम। तो ये सब इसके डीमेरिट्स। अब आ जाते हैं अदर्स जो मॉनिटर्स हैं। तो फ्रेंड्स अदर्स मॉनिटर्स में ये चारों जो मॉनिटर्स हैं अगर आप कहो तो दे आर सिमिलर इन सिमिलर रूप से इनके हैं सभी के, लेस requires less electricity, lightweight, occupying less space and easy to shift। ये सब इसके मेरिट्स हैं। इन सब के पहली चीज के रिक्वायर्स लेस, ये सभी दिखने में सेम होते हैं और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, कम जगह इनको चाहिए और इजी टू शिफ्ट है। मीन्स कि इसको कहीं भी ले जाना, पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी इसके अंदर है, कहीं भी इसको आप ले जा सकते हो क्योंकि हल्के होते हैं आसानी से। इवन कि लोग इसको वॉल पे भी हैंग कर देते हैं ये सब मॉनिटर्स। अब इन सब में चारों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज जस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं उसका डिफरेंस है। अब टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करते हैं? TFT जो मॉनिटर होते थे ये ट्रांजिस्टर इसमें यूज किए जाते थे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता था। LCD में जैसा कि इसका नेम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक डायोड होता था LCD, एक कंपोनेंट है जो इसके अंदर यूज होता था। LED में लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज होने लगे और प्लाज्मा में एक प्लाज्मा होता है जिसमें गैस फील्ड होती है और ये चार्ज होता है, आयनाइज्ड होता है, तो इसके थ्रू डिस्प्ले आता है। जैसे प्लाज्मा मॉनिटर ज़्यादातर टीवी के फॉर्म में यूज होता है, मॉनिटर के फॉर्म में उतना कंप्यूटर में मोस्टली यूज फॉर टीवी के साथ ज़्यादा यूज होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा मॉनिटर में कम यूज, सिस्टम में कम यूज करते हैं, कंप्यूटर में हम सिर्फ 3 ये यूज करते हैं। जिसमें से सबसे बेस्ट जो ज़्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज जो होता है वो LED होता है, बिकॉज दे हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी and less effects on our eyes, the eyesight affects। ये LED मॉनिटर ज़्यादा यूज होते हैं इन तीनों में, TFT में, LCD में LED ज़्यादा यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी इन तीनों में सबसे बेस्ट है और ये कम अफेक्ट करते हैं हमारे आई साइट, मतलब हमारे आंखों पे कम इफेक्ट होता है, रेस वगैरह, रेडिएशन वगैरह उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। तो LED मोस्टली यूज़ होते हैं। फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है इनके फुल फॉर्म। TFT का, CRT का भी फुल फॉर्म मैंने लिखा है, कैथोड रे ट्यूब, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का, LED का लाइट एमिटिंग डायोड है, प्लाज्मा है, डजंट हैव एनी फुल फॉर्म। तो ये इसके फुल फॉर्म से ही आप उसकी टेक्नोलॉजी को या उसकी वर्किंग को समझ सकते हो। जैसे कि CRT मॉनिटर से पता चल जा रहा है उसके अंदर एक ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब। TFT में एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है जिससे वो बनता है,
एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं। तो ये मॉनिटर के टाइप्स हैं। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वेरी वेल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू मॉनिटर इज इट्स रिजोल्यूशन। पिक्चर क्वालिटी को आप किससे मेजर करोगे? मॉनिटर में एक टर्म होता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? इट शोज और मेजर द पिक्चर क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। यह किसी मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी को मेजर करने के लिए या दिखलाने के लिए यूज होता है। क्या? रिजोल्यूशन। और कैसे दिखलाते हैं? इसको दिखलाते हैं, इसकी यूनिट होती है पिक्सल। क्या होती है? पिक्सल। फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल इज पिक्चर सेल। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, पिक्चर सेल। इसको पिक्सल कहते हैं शॉर्ट में। अक्सर आपने पिक्सल वर्ड सुना होगा, बट मोबाइल फोन्स में लोग ज़्यादा बात करते हैं कैमरे के रिगार्डिंग कि मेरा कैमरा 4 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का है या 20 मेगापिक्सल्स का है। तो जितना ज़्यादा मेगापिक्सल्स होगा तो माना जाता है कि वो कैमरा अच्छी क्वालिटी का पिक्चर जो है कैप्चर करेगा। ओके, तो सेम एज मॉनिटर में भी उसकी पिक्चर क्वालिटी को शो किससे करते हैं? पिक्सल से, पिक्चर सेल से, रिजोल्यूशन से। तो मॉनिटर में जो पिक्सल्स होते हैं, पिक्चर सेल, पिक्सल मीन्स होता है पिक्चर सेल। सेल मीन्स जो डिजिटल इमेज बनती है फ्रेंड्स, वो एक सेल से बनती है। मीन्स कि जो सपोज दैट ये मॉनिटर है, मॉनिटर की स्क्रीन का आपको पिक्चर इमेज देगा तो एक एक डॉट से बनती है। किससे बनती है? डॉट से। तो इस एक डॉट को हम क्या कहते हैं? पिक्सल। क्या कहते हैं? पिक्सल। इसी का फुल फॉर्म है पिक्चर सेल। हो गया ना? सेल मतलब एक यूनिट, पिक्चर सेल। तो इसी एक एक डॉट से पूरी इमेज बनती है जो आप मॉनिटर पे देखते हो। तो दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो ये पिक्सल ज़्यादा होंगे तो पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, कम होंगे तो लो पिक्चर क्वालिटी होगी। इसी को हाई रिजोल्यूशन और लो रिजोल्यूशन कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो पिक्सल को जो है विड्थ और हाइट में शो किया जाता है। जैसे एक चीज मॉनिटर में होती है, उसको कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। तो इट इज यूज्ड टू शो द proportion between it मॉनिटर की वेट और हाइट के प्रोपोर्शन को मीन्स अनुपात को हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ओके, जनरली जो अर्लियर डेज में मॉनिटर आते थे या टीवी होते थे, उनका एस्पेक्ट रेशियो होता था 4:3। ये बहुत पॉपुलर एस्पेक्ट रेशियो, बट अब अलग अलग आते हैं। 4:3 का मतलब ये हुआ कि अगर विड्थ, अगर इसको आप इंच में ले लो तो 4 इंच अगर विड्थ होगी मॉनिटर की तो 3 इंच हाइट होगी। ओके, ये विड्थ को डिस्प्ले करता है फर्स्ट कॉलम, और जो है किसके लिए? विड्थ के लिए, मॉनिटर के, और ये हाइट के लिए। तो इसी के रेशियो में बनता है विड्थ और हाइट। जैसे अगर सपोज दैट 4 से मल्टीप्लाई आप करते हो तो 16 इंच अगर विड्थ होगी मॉनिटर की तो 12 इंच उसकी क्या होगी? हाइट होगी। ओके, तो इसमें जितने पिक्सल्स होंगे उनको रिजोल्यूशन कहते हैं। तो अब कैसे रिजोल्यूशन बनाए जाते हैं? जैसे कि और ये रिजोल्यूशन कहाँ से आप सेट करते हो, चेंज कहाँ से करते हो रिजोल्यूशन को? रिजोल्यूशन को आप चेंज करते हो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में जाके। आप विंडोज़ में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करने से प्रॉपर्टीज़ में आप जाते हो तो वहाँ से आप रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। ओके, तो रिजोल्यूशन में दिया हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। जैसे रिजोल्यूशन ऑप्शन में आप जाओगे
वहाँ जैसे रिजोल्यूशन अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 800x600 या इंटू 600 का रिजोल्यूशन पिक्सल्स का है। फिर कहीं भी लिखा हुआ 1024 इंटू 768 या कहीं लिखा हुआ है 1200 इंटू 800 का रिजोल्यूशन, कहीं 1800 गुणे 1200 का रिजोल्यूशन। ओके, ये पिक्सल्स में होते हैं, स्क्वायर पिक्सल्स के फॉर्म में सब होते हैं। तो ये रिजोल्यूशन होती है। आप रिजोल्यूशन जो है आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, पिक्चर जो पिक्चर क्वालिटी बिकम बेटर देन अर्लियर वन। तो ये रिजोल्यूशन को आप जितना हाई करेंगे पिक्चर क्वालिटी या वीडियोस वगैरह देखो और अच्छी दिखेगी। बट एक चीज़ है कि रिजोल्यूशन जैसे जैसे आप हाई करते जाओगे रिजोल्यूशन, अब ये सबसे हाई रिजोल्यूशन, ये लो है, ये सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन हो गया इसका। इससे ज़्यादा वाले मॉनिटर आते हैं, लोएस्ट है फॉर्म इसका। तो हाई रिजोल्यूशन में ज़्यादा पिक्सल हो गया, 1800 जो विड्थ में पिक्सल है और 1800 कॉलम्स हो गया और उसके रोज हो गया 1200 हो गए। तो मीन्स इतने पिक्सल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पिक्सल्स आ जाएंगे। तो पिक्सल्स ज़्यादा होने से क्या होगा, जैसा कि अभी एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली दैट कि द नंबर ऑफ पिक्सल इफ द नंबर ऑफ पिक्सल्स आर मोर देन द पिक्चर क्वालिटी विल बिकम इम्प्रूव। ओके, तो जैसे आप पिक्सल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, पिक्चर क्वालिटी उतनी इम्प्रूव होती जाएगी। ओके, तो बट एक चीज़ और होती है कि विंडोज़ में जो डिस्प्ले होता है, सपोज दैट कि अगर आप ये 800x600 पिक्सल सेट किए हुए हो अपने मॉनिटर का, तो उस केस में जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसके डेस्कटॉप पे जो आइकन्स वगैरह दिख रहे हैं, टास्क बार दिख रहा है या माउस पॉइंटर दिख रहा है या बैकग्राउंड में जो फोटोज़ वगैरह लगी है, तो वो सब बड़े बड़े साइज़ के दिखेंगे आपको, आइकन्स वगैरह, टास्क बार या पॉइंटर जो भी चीज़ है या स्टार्ट मेन्यू वगैरह, सारी चीज़ें जो है थोड़ी लार्ज साइज़ में आपको दिखेंगी। बट अगर आप हाई रिजोल्यूशन करते जाओगे तो देखोगे उसकी साइज विल बिकम स्मॉलर, छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पिक्सल्स नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ते हैं तो वो क्लोजर होते हैं और पास आते हैं पिक्सल्स की गैपिंग कम होती जाती है। तो पास होने से क्या होता है, उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं साइज़ छोटी हो रही तो कैसे पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। पिक्चर क्वालिटी में आपको पता कब चलेगी, व्हेन यू ओपन एनी इमेज और वीडियो। जब वीडियो आप ओपन करोगे तब लगेगा हाँ पिक्चर क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हुई पहले से।